Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you the remainder part in chapter number 6, The Making of Scientist. So, we have read till page number 2 in the first part of the video, and we will continue with the story, right? So, this is a story of a student who transforms himself into a scientist, and his name was Richard H. Ebright, in short, Richie. This name was given by her mother, and her mother has accompanied her at every stage of his life, and that's what make a difference in his life. इसी के कारण जो है उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया. Richie was like quite different guy, quite different student. He was having fascination towards butterflies, collecting things, and that passion led him to the transformation till scientist. तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा और देखा था कि कैसे रिची जो है अपने होम टाउन दैट इज़ रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया स्टेट का एक पार्ट है रिची. वहाँ पे उन्होंने 25 स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज कैप्चर किया था, पकड़ा था. विल सी दैट species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. So gossamer winged butterflies, then snout butterfly, wood nymphs and stars, monarchs, whites and sulfur. Brush footed butterflies, these are the subspecies, and you can see here the names. Now from where this fascination grew up in him, कहाँ से fascination उनके अंदर पढ़ा. So here you can see like when but then my mother got me a children book, that was The Travel of Monarch. This was the book. And what was the thing which provoked him, or which actually literally we can say motivate him to go for this? That was the book which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science, right? तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, पढ़ा था. अब आगे पढ़ेंगे. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the Universities of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to the Dr. Urquhart. तो हम इसमें देखते हैं कि जब वो बुक कहानी जो है पूरी ख़त्म हो जाती थी, तो रीडर्स को जो है इनवाइट किया जाता था. और इनविटेशन किस लिए होता था? ताकि वो स्टडी में, बटरफ्लाई के माइग्रेशन के स्टडी में वो मदद कर सकें, अपने रिव्यूज़ को दे सकें, फीडबैक बता सकें. उनको जो है बोला जाता था बटरफ्लाइज़ को टैग करने को, और वो टैग जो है रिक्वेस्ट किया गया था. एक रिसर्चर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा में. तो उनको जो है एब्राइट्स की मदर ने जो है एक लेटर लिखा, और उसके बाद जो है एब्राइट को भी वो अटैचिंग ऑफ लाइट एडेसिव टैग्स जो मोनार्क बटरफ्लाइज थे उसके विंग्स में लगाने का जो है इनको परमिशन मिल गया, और डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट के साइड से. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart.
और कोई भी व्यक्ति अगर उस टैग किए गए बटरफ्लाई को अपने एरिया में देखता था तो उसका काम था कि उसको मतलब बताना था, उसको भेजना था डॉक्टर उर्कहार्ट के पास में। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन around a reading lasts 6 weeks in late summer. Now see paragraph below. We'll see that if you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for the Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly, which you all have and we have read in our science classes in lower classes. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. नाउ हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब उनको डॉक्टर उर्कहार्ट से ये परमिशन मिल गया तो नो रिची ने जो है बटरफ्लाई, डॉक्टर रिचर्ड एच एब्राइट ने जो है बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का एक टाइम चुना, सीजन चुना। दैट वाज उनके हिसाब से रीडिंग जो जगह है वहाँ पे लेट समर में लास्ट का जो 6 महीना होता है, दैट इज़ द मीन बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन कहलाता है वो। यहाँ पे पैराग्राफ में दिया भी गया है कि गोजमर बिंक्ड वुड नाइम्स एंड सटायर्स, ब्रश फुटेड, वाइट एंड सल्फर्स, मोनार्क। नाउ यू कैन सी हियर मोनार्क का जो है क्या है, number collected, right? 1 kinds here given. So the most number of butterflies collected are brush footed. Okay, now we can see, we will see more about it. उसके बाद कहता है कि उनको जो है एक एक करके पकड़ना जो है काफ़ी टफ़ लगता था, तो आप ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक नया तरीका क्या निकाला, उन्होंने एक फ्लॉक रेज़ किया बटरफ्लाइज़ के लिए, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज़, जिसमें बटरफ्लाइज़ अट्रैक्ट होके आते थे, उसमें अपना घर बनाते थे, रहते थे। तो आई मीन ही जस्ट एक्चुअली प्लान्ड वेरी वेल। उन्होंने बटरफ्लाइज़ के पीछे भागने के बजाय उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें बटरफ्लाइज उनके पास आए। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उसमें एक फ़ीमेल मोनार्क को वो पकड़ते थे, टेक हर एग्स, उसके अंडे जो है ले करके, और उसको रेज़ करते थे अपने बेसमेंट में। जो एक लाइफ साइकिल होता है, यू ऑल हैव रेड इन द साइंस, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि कैसे एग से कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर से पुपा एंड देन अडल्ट बटरफ्लाई बनता है। इस तरीके से लाइफ साइकिल को उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में रेज़ करना शुरू किया। एंड देन ही वुड टैग, जैसे ही वो बटरफ्लाइज बन जाता था तो उसके विंग को टैग कर देते थे और उसको छोड़ देते थे। और इस तरीके से कई सालों तक जो है उनका घर का जो बेसमेंट था वो हज़ारों मोनार्क्स जो अलग अलग स्टेज पे डेवलप थे, डेवलपिंग के कंडीशन में थे, उनको उन्होंने टैग करना शुरू किया। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज़ इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। हालांकि इस परिस्थिति बस जो है वो उनको बटरफ्लाइज को में टैग लगाना जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। कहते हैं कि ये काफ़ी थका देने वाला काम था और इसमें कुछ ज़्यादा उनको प्रोग्रेस मिल नहीं रहा था, उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड। और वो हंसते हुए बताते हैं कि मैं सारे समय यही करता रह गया। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। जितने भी बटरफ्लाइज उन्होंने टैग किए उसमें से आप सोच सकते हो कि सिर्फ 2 बटरफ्लाई जो है उन्होंने रिकैप्चर किया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई हैव लिव्ड। और वो उसी सराउंडिंग में थे, करीब 75 माइल्स दूर रीडिंग जो प्लेस है उसी के सराउंडिंग में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय नहीं किया था उस बटरफ्लाइज जहाँ पे उसको रिकैप्चर किया गया, जहाँ पे उसको दोबारा पकड़ा गया।
Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. अब जो है यहाँ पे उनके लाइफ में जो है एक्चुअली दीज आर द स्टेजेस जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा वो स्टेजेस है, कैसे उनके लाइफ में चेंजिंग आ रहा है, कहाँ से कहाँ वो उनका जो है लाइफ जंप करके दूसरे स्टार्टिंग को शुरुआत को जो है पा रहा है. वी कैन सी हियर नाउ व्हेन ही वॉज इन 7th. यहाँ पे बोलता है कि जब वो 7th ग्रेड में गए तो उनको जो है एक इशारा मिला कि व्हाट रियल साइंस इज़, किस तरीके का रियल साइंस होता है. उनके सोच से आगे की बात थी. और ये कब एहसास हुआ उनको, जब वो एक साइंस फेयर में गए, कंट्री के एक साइंस फेयर में गए, और वहाँ जाने के बाद अपने आप को वो उन्होंने खो दिया उस फेयर में. कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. और वो इस बात पे दुख व्यक्त करते हैं कि उनको ये काफ़ी बुरा लगेगा कि जहाँ पे सारे लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, प्राइज़ मिल रहा है, और इनको वहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ और कुछ नहीं मिलना काफ़ी दुख पहुँचा रहा था. ब्राइट सेड एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं. इन्होंने जो रिसर्च किया था उसके ऊपर कुछ मिला नहीं. एब्राइट सेड, एब्राइट ने ये सारी बातें कही. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. ही रियलाइज्ड वीनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. उनकी जो तरफ से चीज़ वहाँ पे इवेंट में जो है कंट्री साइंस फेयर में जो है उन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन दिया था वो एक क्या था कि एक फ्रॉग के टिश्यूज़ स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ के बाद फ्रॉग के टिश्यूज़ को स्लाइड्स पे उन्होंने दिखाया था माइक्रोस्कोप की मदद से. और जब दूसरे पार्टिसिपेंट की उन्होंने एक्सप्लेनेशन और वो देखा, प्रोजेक्शन देखा, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि दूसरे लोगों ने जो है सच में रियल एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को साबित किया है, और इनका जो है सिंपल एक नीट डिस्प्ले सिर्फ डेमो देखने के जैसा था. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट that drives a Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. He said the subject I knew most about was the insect work I had been doing in past several years. अब जो है उनको ये पता चला कि ये प्रतियोगी जो एक स्पिरिट होती है, प्रतिस्पर्धात्मक जो एक स्पिरिट होती है, वो उनको एक उस छोर पे ले गया लाइफ में जहाँ पे उनको ये समझ में आ गया कि अब इस साल नहीं हुआ तो अगले साल जो है मैं इस फेयर में फिर वापस आऊँगा और कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा. और इस बात को उन्होंने ठान लिया, और उनको मालूम था कि उनको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जो है इस फेयर में लाना है जिसमें उनको महारत हासिल है, और वो था इंसेक्ट के ऊपर वर्क, क्योंकि वो बहुत सालों से जो है इन चीज़ों को करते आ रहे थे. सो ही रोट टू डॉक्टर वुडहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक came a stack of suggestions for experiments. Those kept Bright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. फिर उसके बाद उन्होंने जो है डॉक्टर उर्खा से कुछ सलाह मांगा, सजेशन, आइडियाज़ मांगा घर पे, मतलब वापस आने के बाद, और कैसे क्या किया जाए ताकि उनको काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में अपने आप को प्रोजेक्ट करना. तो उनको बहुत सारे उन्होंने स्टैक ऑफ सजेशंस, बहुत सारे उनको जो है सजेशंस वापस एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए, और इसके कारण वो काफ़ी पूरे हाई स्कूल का लाइफ जो उनका रहा काफ़ी बिजी रहा, वो सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते गए, और यही चीज़ जो है उनको आगे चल के काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में विनर बनाने में मददगार साबित हुआ. फॉर हिज eighth grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills
nearly all monarch caterpillars. Every few years, Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I did not get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. ना इस बार जब वो एट्थ स्टैंडर्ड में थे, उसका प्रोजेक्ट जब उनको मतलब मिला, तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में जो है ये दिखलाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअली क्या एक वायरल डिजीज़, कौन सा एक ऐसा वायरल डिजीज़ है जो लगभग सारे मोनार्क कैटरपिलर को जो है मार देता है। और क्योंकि उनके पास ये इसका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने अपने बेसमेंट में मोनार्क्स को पाला था, उनके लाइफ साइकिल को देखा था नज़दीक से, और एब्राइट को ऐसा लगा, उनको ऐसा, उनके विचार में ऐसा था कि शायद बीटल जो है, बीटल इज़ अगेन स्पीसीज, एक तरीके का इंसेक्ट है, उसकी वजह से जो है बीमारी आ रही है। तो इसलिए उन्होंने बीटल को भी जो है कैटरपिलर के पास रखा, प्रेजेंस में, बीटल के प्रेजेंस में कैटरपिलर के पास रखा, लेकिन उनको इसमें कोई संतोषजनक रिज़ल्ट नहीं मिला। बट स्टिल उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की, उन्होंने आगे चल के ये मतलब दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने एक ट्राई किया, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर ट्राई किया, और जिसके कारण उनको ये अवार्ड मिला। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroys butterflies copy monarchs. अगले साल का जो उनका एक्सपेरिमेंट था प्रोजेक्ट का, वह ये था कि उनको मोनार्क और वाइसरॉयज बटरफ्लाइज में अंतर दिखाना था, यह बतलाना था कि वाइसरॉयज बटरफ्लाइज जो है मोनार्क्स का कॉपी करते हैं और कॉपी जैसे दिखते हैं। हियर वी कैन सी, ये दो, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो बटरफ्लाइज का इमेज दिया गया है। दैट इज़, you can see how is the monarch butterflies top. This is a monarch and these are viceroys butterflies. दोनों में कितना अंतर है ना। The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. इसमें यह बताने की कोशिश की गई, साइंस प्रोजेक्ट में जो है, टेस्टिंग थ्योरी में जो है बताने की कोशिश की, दोनों एक जैसे दिखते हैं, कॉपी करता है। और थ्योरी ये दिया गया कि वाइसरॉय जो है दिखने में तो मोनार्क जैसा है, बट मोनार्क जो है उस बर्ड्स को ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसका स्वाद जो है उसको अच्छा नहीं लगता है, और इसका फ़ायदा जो है वाइसरॉयज तितली को मिलता है। एज़ वी ऑल नो कि जो तितली होती है वो बर्ड्स का फूड होता है, पक्षी का भोजन होता है। तो इसके कारण जो है, चूँकि मोनार्क्स टेस्ट अच्छा नहीं लगता है बर्ड्स को, तो उसका फ़ायदा वाइसरॉयज बटरफ्लाइज को भी मिलता है, और ये उसका भोजन बनने से बच जाते हैं। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary birds' food. Ebright का प्रोजेक्ट में जो है मतलब was to see, ये देखना चाह रहा था कि इनफैक्ट सच में क्या बर्ड्स जो है क्या मोनार्क्स को खाते हैं, बर्ड्स वुड ईट, खाएंगे। ही फाउंड, और उनको यह पता चला था कि स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। स्टारलिंग जो है कोई ऑर्डिनरी बर्ड फूड को नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, और इसके बजाय जो है वो सारे मोनार्क्स को खा जाएगा जो भी उसको मिलेगा। एब्राइड्स said later research by the other people showed the viceroys probably
डू कॉपी द मोनार्क्स। और बाद में उन्होंने ब्राइट ने यह भी बताया कि बहुत सारे उनके रिसर्च के हिसाब से नहीं, लेकिन बहुत सारे अदर लोगों के रिसर्च के हिसाब से जो है वायसराय संभवतः कॉपी करता है मोनार्क को, यह बात साबित हो चुकी है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और यह जो प्रोजेक्ट 8th स्टैंडर्ड का था उनको जियोलॉजी डिवीज़न में सबसे टॉप पे रखा गया था उस कैटेगरी में, और पूरे अगर काउंटी फेयर की बात करें तो उसमें ओवरऑल 3rd पोजीशन पे आया था। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव read here till second part, and we'll continue this story in next part as well. The story, I have told you that there would be 3 part of this video, so stay tuned with the channel for line by line explanation, and that will help you your understanding. आपको अंडरस्टैंड करने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं. So guys, now we'll meet in third part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.